सवाल का हल मिलेगा अलग अंदाज में। जीनियस लोग बताएंगे कई राज है हर राज में, सुनो उनकी बातें, सीखो हर बात का सार। जब भी चाहो भी लाएगा हंसी और ज्ञान अपार, जीनियस प्यारे का ज्ञान दिल में बसाए प्यार। जब भी चाहो का साथ, अब किस बात का इंतजार। आब्राकडाब्रा जो मंत्र के होंगे करतब, जादूगरी होगी ऐसी क्या उठेगी सर। पाठशाला पाठशाला ये मस्ती की पाठशाला, पाठशाला ये मस्ती की पाठशाला। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट दिमाग हिला देने वाले शो में मस्ती की पाठशाला। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट आलिया हुसैन और मैं हूँ आपकी प्यारी दोस्त संस्कृति वर्मा। यहाँ मिलेगा फन, मस्ती और नॉलेज, वो भी फुल ऑन धमाकेदार स्टाइल में। और आज का हमारा शो एक ऐसे टॉपिक पर है जो हर स्टूडेंट के दिल के बहुत करीब है। बिल्कुल आलिया। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कंसंट्रेशन इन स्टडीज की, यानी पढ़ाई के वक्त ध्यान कैसे बनाया जाए और डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचा जाए। मिलेंगे हमारे प्यारे जीनियस से जो पूछेंगे आपसे कुछ ऐसे सवाल जो होंगे थोड़े ट्रिकी और थोड़े ट्विस्टी। जहाँ नॉलेज है मजेदार और लर्निंग है जबरदस्त। सो दोस्तों, आर यू रेडी? जब मस्ती का हो मैजिक और दिमाग हो शार्प लाइक लॉजिक, तो शो बन जाता है एकदम एपिक। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी सुपर पावर की जो हर स्टूडेंट के पास होती है पर कभी कभी खो जाती है, और वो है कंसंट्रेशन। तो देर किस बात की, तैयार हो जाए कुछ ऐसे नए सफर के लिए, क्योंकि हमारा शो होने वाला है सुपर फन। कुछ पैशनेट छोटे चैम्प्स ने बनाया एक मजेदार प्रोजेक्ट। तो दी देख लेते हैं उनकी ये वीडियो। बिल्कुल आलिया। So today we have reached a super cool school to explore all the amazing things happening here, and also to explore the hidden talents of the meritorious students of RP Memorial Senior Secondary Public School. So very first, we are in the biology lab of this school. Here we have the amazing talented students of class 11 science who are Palak, Daksh and Ishan. They all have participated in the SDT University and proved that they have their own hidden talent by making a model on smart dustbin. Now I would request them to explain their project. Very first, I would ask them, why did you choose this topic to make this project? I saw the increasing ratio of garbage in our surroundings. I saw a person who is disabled and he is not able to open or close the dustbin lid by itself. So I decided to make a dustbin, to make a project which can open or close by itself without any physical contact. What are the applications of this project in the daily life? The applications of smart dustbin we can use in homes and offices too, by providing hygiene, by offering a touchless and a hand-free way to dispose the waste. Not only that, we can use in hospitals too, as it reduces the chance of contamination and reduces the risk of physical contact with the bin. Not only that, we can use this in public places too, as in high traffic area it is very useful for us. Not only that, a person with special needs, like they are not able to bend, this smart dustbin are very helpful for that sort of peoples too. How did you work as a team for this project? When I decided in making of this project, I need two or more partners to contribute and help me in this project. So I have seen the potential in Palak and Ishant and that efficiency to help me in this project. The Palak handles all the technical work on this project, and me and Ishant handles the all assembling of the components in this project. From where did you got the inspiration to make this project? By seeing the rapid garbage collection in our environment, from where we got the idea to make a smart dustbin, which is very beneficial in waste management, and it reduces the chances of fuel consumption too, which is very valuable for our environment. From where did you collect the data or information to make this amazing project? We collect the data from Wikipedia and information for this project. As I see the increasing ratio of the garbage in our surroundings and the people who are disabled, who are not able to open or close the lid of the dustbin by own self, so I have decided to make this project
to contribute in our society. Let me show you how it works. When you came in the radius of 15-30 centimeter, it can open by itself, and after a delay of 3 seconds, it's closed by itself. See, it removes, it minimizes the physical contact with the bean and improves the hygiene. Wow, what a wonderful project. I would appreciate all of your hard work. Thank you for your cooperation. वाओ दी, इन्होंने कितना स्मार्ट डस्टबिन बनाया था ना। बिल्कुल आलिया, ये है छोटे चैम्प। आइडियाज के है मास्टर और इनोवेशन है इनका पैशन। यस दी, आपने एकदम सच बात कही। बहुत मजा आया है ना आलिया? यस दी, बहुत मजा आया। पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। दोस्तों, आपने कभी ऐसा फील किया है कि किताब तो खुली है लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा है? इसे कहते हैं लैक ऑफ कंसंट्रेशन। फ्रेंड्स, लैक ऑफ कंसंट्रेशन इज वन ग्रेट कॉज ऑफ फेलियर। आज हम इसी टॉपिक पर अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे जो बताएंगे कि ड्यूरिंग स्टडीज हम फोकस कैसे बनाए रखें। लेट्स वेलकम मिस नीतू राय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट सोशल साइंसेज, चिन्मय विद्यालय, वसंत विहार। मैम, आई वुड लाइक टू आस्क यू, आजकल के टाइम पे बच्चों के लिए इतना चैलेंजिंग क्यों है फोकस रहना? आजकल का टाइम बहुत चैलेंजिंग है, सिंस वी ऑल नो कि हम टेक्नोलॉजिकल एज में रहते हैं जहाँ हर घर में हर बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन है, टैबलेट है, और इस सिनेरियो में बच्चे बहुत सारा ऑनलाइन कंटेंट देखते हैं, गेम्स देखते हैं, यू नो, एंड बिकॉज ऑफ दिस बहुत ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एट द सेम टाइम यू नो देयर आर लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, कॉम्पिटिशन्स जो कि उनको फिर दोबारा से डिफोकस करता है, उनको एग्जाइटी क्रिएट करता है और कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं वो लोग। राइटली सेड मैम। फ्रेंड्स, फोकस इज मोर इम्पोर्टेंट दैन इंटेलिजेंस। थैंक यू फॉर द आंसर मैम। फ्रेंड्स, आज हमारे शो में हमारे साथ जुड़े हैं चिन्मय विद्यालय वसंत विहार के कुछ स्टूडेंट्स और वो हमारे एक्सपर्ट से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। Can I have the first question, please? Ma'am, my name is Avika Pant and I'm from Chinmay Vidyalaya, New Delhi. Ma'am, my question is, क्या एक डिसिप्लिन रूटीन और सही खाना हमारे दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करने में मदद कर सकता है? रूटीन और सही खाना हमें बहुत इम्पैक्ट करता है, हमारी माइंड को बहुत इम्पैक्ट करता है। इनफैक्ट जब हम एक रूटीन में रहते हैं, सब टाइम पे सोते हैं, टाइम पे उठते हैं, टाइम टेबल फॉलो करते हैं, सो हमारी बॉडी, हमारा माइंड ट्रेन होता है और हमें फोकस करता है। एंड दिस विद द फोकस एटीट्यूड डेफिनेटली वी कैन इम्प्रूव आवर अटेंशन स्पैन, वी कैन सिट फॉर अ मोर नंबर ऑफ आवर्स and we can do whatever is there in a better way. Thank you, ma'am. मैम, मेरा भी आपसे एक क्वेश्चन है। आजकल के डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए स्टूडेंट अपने एनवायरनमेंट को कैसे सेट कर सकते हैं? मुझे ये लगता है कि अपने एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए पहले ज़रूरी है कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग विल हो। स्ट्रॉन्ग विल कैन डेफिनेटली set environment. So with the strong will, whenever we are studying, we need to keep our mobile phone away with us. That is the first and very important thing, so that we cannot distract. At the same time, जहाँ पर भी हम पढ़ने बैठे वहाँ पर noise free space बनाएं, clutters को हटाएं, and with you can say decide the aim for how many hours you are going to study. टाइम टेबल बनाओ अपने पास, टाइम टेबल रखो एंड स्टिक विद दैट रूटीन। इट माइट पॉसिबल दैट यू आर नॉट एबल टू फॉलो द रूटीन एवरी डे, बट ट्राई टू स्टिक विद दैट रूटीन, एंड विद दिस consistent effort you can definitely bring the change. Thank you so much, ma'am, for your answer. Friends, can I have the next question, please? Ma'am, my name is Ashwat Singh. Ma'am, my question is कि क्या पेरेंट्स का प्रेशर ज़्यादा होने से बच्चों का फोकस टूट सकता है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं बच्चे को या बहुत अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो बच्चा डीमोरलाइज होता है, टेंशन में आता है, स्ट्रेस लेता है, देन अगेन उसकी मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट होता है और बच्चा नहीं इतना फोकस कर पाता है। इनफैक्ट बच्चे को लव, मोटिवेशन, केयर, सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ना कि क्रिटिसिज्म और अननेसेसरी कंपैरिजन की ज़रूरत है। थैंक यू मैम फॉर योर आंसर। नीतू मैम, क्या मैं भी आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ प्लीज? मैम, मैं जानना चाहता हूँ क्या नींद की कमी से भी कंसंट्रेशन में कमी हो जाती है? हाँ जी, ऐसा भी होता है। अगर आपका नींद पूरा नहीं है
तो डेफिनेटली आप कंसंट्रेशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि मिनिमम 8 आवर्स स्लीप इज़ मस्ट। तो 8 घंटे की नींद तो होनी ही चाहिए। अगर आप 8 घंटे नहीं सो रहे हो तो आप क्या रहोगे, एनर्जाइज नहीं रहोगे, काम करने का मन नहीं करेगा, फोकस नहीं कर पाओगे, एंड देन डेफिनेटली आपका कंसंट्रेशन बेटर नहीं होगा। सो स्लीपिंग इज़ मस्ट, एंड एट द सेम टाइम रूटीन के साथ कि आप ये डिसाइड करिए कि आपको 10 बजे सोना है तो 10 बजे सोना ही है। सुबह ट्राई टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, 5 बजे 6 बजे, मेक अ रूटीन फॉर इट, एंड ऑल्सो डू सर्टेन एक्सरसाइज विच मेक्स योर माइंड एक्टिव। मुझे तो सोना बहुत पसंद है मैम, मैं तो अपनी नींद पूरी करता हूँ, इसीलिए तो हूँ मैं जीनियस प्यारे। थैंक यू सो मच मैम। फ्रेंड्स, कंसंट्रेशन का मतलब होता है अपने सराउंडिंग्स, थॉट्स और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना चाहिए। कंसंट्रेशन कैन बी कल्टिवेटेड। वन शुड लर्न टू एक्सरसाइज विल पावर, ट्रेन वंस माइंड एंड डिसिप्लिन वंस बॉडी। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे शो में आए, आपने हमें और हमारे व्यूअर्स को इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी, कंसंट्रेशन के बारे में बताया, फोकस रहने के बारे में बताया। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। जितना प्रैक्टिस उतना फोकस ऑटोमेटिक। वेरी ट्रू जावी। Now it's time. Genius प्यारे, let's begin the quiz. Do you know? फ्रेंड्स, आप जानते हो, ये फैक्ट सुन के आप बोलोगे वो ब्रो। डू यू नो, ये बातें हैं फुल ऑन माइंड ब्लो। आज जानेंगे कुछ ऐसे आइडियाज और हैक्स जो आपको बनाएंगे कंसंट्रेशन का किंग या क्वीन। माय फ्रेंड्स, फिकर नॉट, छोटी छोटी विंस ही बनाते हैं बड़े चैंपियंस। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चैंपियंस, आप लोग तैयार हो? तो चलो शुरू करते हैं आज की जबरदस्त क्विज। तो मेरा पहला सवाल, सब लोग ध्यान से सुनना। What kind of environment is best for focus studying? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए noisy and crowded, ऑप्शन बी calm and organized, या फिर ऑप्शन सी party like atmosphere, या फिर ऑप्शन डी dark and messy। तो बताइए क्या है इसका सही जवाब? बोलो बोलो। The answer is option B, calm and organized. बिल्कुल सही जवाब, calm and organized। तालियां। इसका मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर शोर और शराबा ना हो, सब कुछ अपनी जगह पर हो और पढ़ाई के लिए एक शांत और पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो। यस, जब दिमाग शांत हो तो मेमोरी स्ट्रांग होती है और कॉन्सेप्ट जल्दी समझ आता है। बिल्कुल 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 सही कहा आलिया। तो चलो अब पूछते हैं अपना दूसरा सवाल। भाई ध्यान से सुनना। How much sleep is generally recommended for school students to stay focused? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 4 hours, ऑप्शन बी 6 hours, ऑप्शन सी 8 to 9 hours, या फिर ऑप्शन डी 10 to 12 hours। बताइए क्या है इसका सही जवाब? Sir, the correct option is option C, 8 to 9 hours. और ये है बिल्कुल सही जवाब। तालियां। 8 to 9 hours। दोस्तों, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि स्कूल एज के स्टूडेंट्स के लिए 8 से 9 घंटे की नींद सबसे ज्यादा जरूरी होती है, समझे? यस जीनियस, जब नींद पूरी होती है तो सुबह फ्रेश फील होता है और पढ़ाई के लिए फोकस मिलता है। बिल्कुल सही आलिया, इसलिए तो मैं भी रहता हूँ हमेशा फोकस। तो चलो पूछता हूँ अपना अगला सवाल। What can reduce focus during study time? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हाइड्रेशन एंड शॉर्ट ब्रेक्स, ऑप्शन बी a quiet clean desk, ऑप्शन सी constant notifications and social media, या फिर ऑप्शन डी setting daily goals। तो बताइए क्या है इसका सही जवाब?
Genius Pyare, the correct option is option C, constant notifications and social media. आहा, और ये है बिल्कुल सही जवाब, तालियां। Constant notifications and social media. रिसर्च कहता है कि एक इंटरप्शन के बाद वापस ओरिजिनल काम करने में फोकस में थोड़े मुश्किल होती है, कम से कम 20 सेकंड लग सकते हैं। ओह, काफी मुश्किल सवाल था, पर आपने इसका बहुत ही अच्छा जवाब दिया। कोई बात नहीं, अब मैं पूछ लेता हूँ अपना अगला सवाल। Which activity is most helpful to reset your focus between your study sessions? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम रील्स, या फिर ऑप्शन बी पावर नैप्स, मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग, या फिर ऑप्शन सी आर्ग्यूइंग विद सिबलिंग्स, या फिर ऑप्शन डी वॉचिंग एन एंटायर नेटफ्लिक्स एपिसोड। आहा, तो बताइए क्या है इसका सही जवाब? Genius Pyare, the answer is option B, power naps and meditation. बिल्कुल सही जवाब, तालियां। पावर नैप्स, मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग। पावर नैप्स हमें रिचार्ज करती है, मेडिटेशन से हमारा फोकस बढ़ता है और डीप ब्रीदिंग से हमारा स्ट्रेस मैनेज होता है, समझे? और अब मेरा आखिरी सवाल, ध्यान से सुनना। Which of the following can help boost memory and concentration? और आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए जंक फूड, ऑप्शन बी प्लेइंग वीडियो गेम्स ऑल डे लॉन्ग, या फिर ऑप्शन सी ईटिंग फ्रूट्स एंड नट्स, या फिर ऑप्शन डी स्किपिंग मील्स। तो बताइए क्या है इसका सही जवाब? Genius Pyare, the correct option is option C, eating fruits and nuts. बिल्कुल सही जवाब, तालियां। Eating fruits and nuts is the right answer. इससे होती है हमारी मेमोरी शार्प और हमारा कंसंट्रेशन होता है मजबूत। जीनियस प्यारे, मैं सब समझती हूँ। फ्रेंड्स, पढ़ाई शुरू होने से 30 मिनट्स पहले एक फ्रूटी नटी स्नैक लो ताकि दिमाग को फुल फ्यूल और स्टेडी एनर्जी मिले। फोकस के बिना पढ़ना वैसे है जैसे बिना पेट्रोल के कार, काम तो स्टार्ट होता है पर एंड तक नहीं पहुंचता मेरे यार। पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। अब वक्त आ गया है उस पल का जिसका सबको था इंतजार। लीजिए, हाजिर है हमारा खास मेहमान, एक ऐसा बॉक्स जिसमें छुपा है जादू और बॉक्स के अंदर है कई सारे मस्ती भरे चैलेंजेस। यस दी, आब्राकडाब्रा गिली गिली छो। आई एम राहुल बरनवाल। आ गया हूं मैं आपके बीच कुछ ऐसे करतब दिखाने जिसे देखकर आप रह जाएंगे दंग। तो चलो मेरे संग जादुई बॉक्स के राज खोलने। दोस्तों, मुझे ये चाबी चबी शावक ने दी है। दोस्तों, आपको पता है चबी मुझे हर बार ये चाबी देता है और इससे मैं जादुई बॉक्स को खोलता हूं और उसमें से ढेर सारे जादू आपको दिखाता हूं। लेकिन आज चबी मुझसे ये चाबी लेना भूल गया है और मैं इससे भी कुछ मैजिक करने वाला हूं। लेट्स सी। दोस्तों, अभी मैं इस चाबी के अंदर कोई जादुई शक्ति डालने वाला हूं। दोस्तों, जादूगर हमेशा जादू में या तो किसी चीज को बदल देते हैं या फिर कोई चीज हवा से प्रकट कर देते हैं या फिर किसी चीज को गायब कर देते हैं। इस चाबी में मैंने कौन सी जादुई शक्ति डाली है
और क्या होने वाला है, लेट्स सी। तो दोस्तों अभी से आपको देखना है कि मेरा हाथ बिल्कुल भी नहीं हिलाने वाला हूं। दोस्तों ये चाबी जादुई बॉक्स के राज खोलती है। सचमुच ये चाबी चमत्कारी है। सो अभी मैं आपको रूबिक क्यूब को सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। लेट्स सी। मैंने कुछ इस तरह से अपने हाथ के ऊपर क्यूब को रख दिया है और देखना मैं कितना जल्दी कमाल करता हूं और इसे सॉल्व करके दिखाता हूं। लेट्स सी। दोस्तों मैं यूज कर रहा हूं एक ढक्कन। ये बिल्कुल खाली है और ब्लैक कलर का है। लेट्स सी। मैंने कवर कर दिया है। And now 1, 2 and 3. So friends, क्या आपको पता है वर्ल्ड का फास्टेस्ट रूबिक्स क्यूब सॉल्वर अभी कौन है? तो दोस्तों आप किसी को बता सकते हो कि मैजिशियन राहुल बरनवाल। Actually, current world records for the fastest Rubik's Cube solve is 3.8 seconds set by Yiheng Wang from China on 16th of February 2025. So, दोस्तों हम एजुकेशन के साथ देख रहे हैं मस्ती की पाठशाला, तो ज्ञान की बातें तो होती ही रहनी चाहिए। और आओ आगे दिखाता हूं मैं आपको और भी कुछ मजेदार जादू। और इसके लिए मुझे एक वॉलंटियर की जरूरत है। वेल, हेलो। हेलो। कैन आई हैव अ गुड नेम? निकिता। ओके, सो मुझे ज्वाइन किया है निकिता ने। तो निकिता अभी कुछ टाइम पहले होली आई थी। हाँ जी। जब मैं होली खेल रहा था तब मैंने एक मैजिक बनाया है। अच्छा। बिकॉज मैं जब भी कोई नया मैजिक बनाता हूं तो मैं किसी ना किसी मोमेंट्स के दौरान कुछ एनालिसिस करके और नॉर्मल सी चीजों से कुछ बड़ा सा इल्यूजन क्रिएट करता हूं। और इस मैजिक के लिए हम यूज करेंगे, ठीक है, 2 ग्लास काफी है और थोड़ा पानी भी चाहिए। सो फ्रेंड्स, हम यूज कर रहे हैं यहां पे ग्लास और वाटर। दोस्तों आपको पता है कि सबसे ज्यादा कलरफुल फेस्टिवल जो है वो है होली। होली में पिचकारी, गुलाल, बलून्स और कलर्स, बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। लेकिन निकिता, हम यहां पे केवल पानी यूज करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल है। पानी आप मेरे ऊपर डालोगे, मैं आपके ऊपर डालूंगा। वैसे भी गर्मी बहुत है। लेट्स सी। सो आप ग्लास पकड़ लो हाथ में। आप आगे आ जाइए यहां पे। दोस्तों ये पानी है। इतना ठीक है? हाँ जी। ये पूरा पानी आपके सर के ऊपर जाने वाला है। सच में? अच्छा। ओके, सो थोड़ा पानी मैं लूंगा और थोड़ा आप लोगे। तो मैं इसको आधा करता हूं। इतना ठीक है? जी। बिल्कुल हाफ हाफ। हाँ? यस। ओके, सो अभी क्या करना है,
इसको अपने सर के ऊपर इस तरीके से पकड़ के रखना है। जस्ट डू दिस, राइट हैंड से अपने सर के ऊपर होल्ड करके और सामने देखना है बिल्कुल। यस, अब मेरी तरफ देखना है आपको और अपनी आंखें बंद करनी है। डोंट वरी, व्यूअर्स हमें देख रहे हैं। आप और मैं, हम दोनों ही आंखें बंद करेंगे और अपनी जगह पर 3 बार गोल गोल घूमेंगे। फाइन, डोंट मूव योर हेड, अदरवाइज वाटर गिर जाएगा। पानी है? यस यस, ओके फाइन। जस्ट एंड नाउ क्लोज योर आईज फ्रॉम नाउ, और अभी स्टार्ट करेंगे घूमना हम 3 बार। स्टार्ट फ्रॉम नाउ, धीरे धीरे आराम से। अभी आंख आपकी बंद रखना। ओके निकिता, ओपन योर आईज। और अब आपको ग्लास ऊपर उठाना है। सो आपको ग्लास को धीरे धीरे इस तरीके से अपने सर के ऊपर उल्टा करना है, मेरी ग्लास को देखते हुए। डोंट वरी, जस्ट ट्रस्ट मी एंड सी इट टू बिलीव इट। आपको मेरे ग्लास को देखते हुए उल्टा करो, बहुत आराम से। ग्लास थोड़ा सा और ऊपर करके मेरे ग्लास को देखो और टर्न करो, टर्न करो, धीरे धीरे टर्न करो, करो। ग्लास को देखो, टर्न करो। ग्रेट। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो पानी बिल्कुल गायब हो चुका है ना मजेदार? बहुत मजेदार। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट निकिता। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग आवर शो मस्ती की पाठशाला। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मिलता हूं मैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा। फ्रेंड्स, देखा आपने, जादुई बॉक्स ने दिए हमें कुछ यादगार पल। यस्ती, कभी हंसी कभी हैरानी। आलिया, कितना मजा आया ना जादू के सेगमेंट में। यस्ती, बहुत मजा आया। कितनी अच्छी ट्रिक्स थी, मैं तो बहुत खुश हो गई। हाँ दी, मैं भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई। मैजिक कितना इंटरेस्टिंग है ना आलिया? हाँ दी, बहुत इंटरेस्टिंग है। आलिया, आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी काफी मजा आया होगा। Oh, thank you everyone. I hope you all had fun. आपका जीनियस प्यारे अब आपसे लेगा विदा अगली बार के लिए। तब तक के लिए keep learning and keep dreaming big. मिलेंगे फिर एक नई स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। तो आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। और अपना फीडबैक देना ना भूलें ऑन आवर ईमेल आईडी masti-ki-pathshala@gmail.com। अगले एपिसोड में इंटरेस्टिंग क्विज, कुछ जादुई ट्रिक्स, नई कहानी और कुछ बेहतरीन लोगों के साथ फिर पाठशाला में मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ो, सीखो और मस्त रहो। बाय बाय।